So it is not applicable to every structure. So we are going to do now the limitation of the octet rule. ठीक है, तो लिमिटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं होता. ठीक है, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विल नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. जैसे कि बीई के अराउंड इस टाइम ओनली एंड ओनली 4 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता. दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटे जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं. दे हैव 10 और 12 इलेक्ट्रॉन, मींस मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. लाइक PCl5, it has phosphorus is having total 10 electrons. So like SF6, it is having 6 fluorine. So there are 12 electrons around the sulfur. और एक और यहाँ बना नहीं 6 हो गई. ओके, 5, 12, even 14 like IF7. तो ऐसे अगर ऑक्टेट रूल है तो ऐसे कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? दे डोंट हैव एनी आंसर. ठीक है, अब नोबल गैसेस यू विल रीड अबाउट 18th ग्रुप इन क्लास 12th. Noble gases are complete with their octet. Then also there are few compounds of xenon. There are few compounds of xenon like XeF2, XeF4, XeF6 और भी बहुत कंपाउंड है. ठीक है, अगर नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसे कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं? नो आंसर. दिस इज अ लिमिटेशन. ओके बेटे, देन some of the compound have odd electrons. Like odd electron मतलब single electron present है, like this. ठीक है, इसमें odd electron है तो ये डाइमराइज होंगे. Do in further. So बेटे this kind of compounds are forming. It means they are not obeying the octet rule. They violate the octet rule. देखो see, we have done second chapter. We have done J.J. Thomson, then we have done Rutherford, then Bohr, then quantum. In the same way बेटे for the covalent molecules, the structure जो हम कर रहे हैं, this is only for the covalent molecules. For ionic compounds, there is one chapter that is solid state in class 12. In this particular chapter, जो आप structure करोगे, क्योंकि covalent compound ही directional in nature है, structure सिर्फ आप covalent compounds के करोगे, वो linearly, pyramidally या tetrahedrally arrange होंगे. ठीक है, structure सिर्फ covalent compounds के ही होते हैं. पहले तो हमने ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं. फिर हम नेक्स्ट थ्योरी पे जाएंगे, दैट इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. नेक्स्ट थ्योरी वी आर डूइंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion theory, which is known as Vesper theory. ठीक, this is known as Vesper theory. First write down what Vesper theory tells to us.
What are the main postulates? The main postulates. Again and again, I am saying you, no one will ask you the postulates, no one will ask you the rules of anything. Just you have to understand and apply the rules or the postulates. So write down, geometry of the molecule depend upon the number of electron pairs. Geometry of the molecule depend upon number of electron pairs. Now this electron pair can be bond pair बेटे, जो bonded state में है, or they can be lone pair. They can be bond pair or lone pair around the central atom. ठीक. Next point, the electron pairs surrounding the central atom repel each other as their orbital electron cloud are negatively charged. These electron pairs repel each other. Electron pair will repel each other as their electron cloud are negatively charged. This is negatively charged. Okay, in order to minimize the repulsion, electron pair tend to occupy the maximum position apart. ठीक. In order to minimize the repulsion, कि इनमें repulsion ना हो, electron pair tend to remain apart as far as possible. If the central atom is surrounded by similar atoms and only bond pairs, if central atom is surrounded by atoms that are similar and bond pairs and only bond pairs, then the geometry will be regular. Otherwise, the geometry will be irregular if there are lone pair. So, taking an example, you will understand. Okay, bete? So, let us start. Write down number of electron pairs. Geometry. Example of the geometry. And we are doing the example of regular geometry. ध्यान से समझो बेटे अब इसको. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, 2 है,
ये बेटे बीच में मैंने बेरिलियम है, दिस इज बेरिलियम, ठीक है, दिस इज बेरिलियम and it is bonded by two chlorine atoms. It is bonded by two chlorine atoms. If beryllium is bonded by two chlorine atoms, वैलेंस शेल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, तो बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं? टू है। ये एक बेरिलियम का ये रहा, ये दूसरा, और ये क्लोरीन के वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ इसने हर एक क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया, तो दीज आर टू बॉन्ड पेयर्स, दीज आर टू बॉन्ड पेयर। ये बेरिलियम है, तो अगर एक बॉन्ड पेयर ये रहा और एक बॉन्ड पेयर ये रहा, वन बॉन्ड पेयर अनदर बॉन्ड पेयर, टू बॉन्ड पेयर्स आर देयर। अब ये बॉन्ड पेयर हमने क्या बोला कि हर एक सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। अब इस बेरिलियम के पास लोन पेयर नहीं बचा, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, बेरिलियम के सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। वैलेंस शेल की बात करें, 1s2 की नहीं बात कर रहे, वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन बेटे हमने यूज कर लिए, तो हमारे पास टू बॉन्ड पेयर है। टू बॉन्ड पेयर एक दूसरे की इतनी को दूरी पे जाएंगे कि एक दूसरे को कम से कम रिपेल करें, तो वो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे? मान लो ये है, ये एक बी है और ये बी है, तो एक दूसरे की 180 डिग्री की दूरी पे हैं, और ये जो शेप बनेगी, ये शेप क्या है? लीनियर, दिस शेप इज लीनियर, सीधी बिल्कुल, बीच में बेरिलियम, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, द शेप विल बी लीनियर। Okay, now if there are three bond pairs, if there are three bond pairs, this is a central, this is B, this is B, this is B, तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा और एक बॉन्ड पेयर ये रहा। जैसे कि अगर बी बोरोन लूं, बोरोन के पास यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दूं बेटी, एक यहाँ फ्लोरीन लगा दूं और एक यहाँ फ्लोरीन लगा दूं, ठीक है, बोरोन के अराउंड इधर 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 फ्लोरीन लगी, तो अब कितने पेयर्स बन गए? 1 2 3 पेयर्स बन गए। अब ये अपने आप को 3 पेयर्स अपने आप को इतनी दूरी पे रखना चाहेंगे कि एक दूसरे को रिपेल नहीं करें। ये सेंट्रल में है, आई एम होल्डिंग, दिस इज अ सेंट्रल, एक यहाँ आएगा, क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पेयर का क्लाउड है, एक क्लाउड यहाँ है, एक क्लाउड यहाँ है और एक क्लाउड यहाँ है, दिस इज अ क्लाउड। क्योंकि क्वांटम आप कर चुकी हो बेटे, इलेक्ट्रॉन एक का क्लाउड दूसरे के क्लाउड की ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल है, ओवरलैप करेंगे, तो एक क्लाउड यहाँ बनेगा, एक क्लाउड यहाँ पे और एक क्लाउड यहाँ पे, तो एक क्लाउड यहाँ नजर आ रहा है और एक क्लाउड मुझे यहाँ नजर आ रहा है और एक क्लाउड यहाँ नजर आ रहा है। तो इसको मैं ध्यान से देखूंगी तो ज्योमेट्री आएगी ट्रायगोनल प्लेनर, और ये मैक्सिमम कितना एंगल बनेगा? दैट इज 120 डिग्री। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, 4 बॉन्ड पेयर्स। फोर का मतलब सेंट्रल में एक एटम है और ये 4 के साथ लगा हुआ है, जैसे कि मीथेन आप करते हो, CH4, ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है
यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे ये वाला कार्बन नजर, मैं ऐसे घुमा लूं तो ये वाला कार्बन नजर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे घुमा लूं तो ये वाला ऊपर आ जाएगा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटे। हर एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, चाहे ये हाइड्रोजन है चाहे ये हाइड्रोजन है, 3D में जाओ। जैसे ये एक हाइड्रोजन है, ये ऊपर जा रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है और एक इस तरफ से आएगा। ये चारों की, ये भी एक हाइड्रोजन है, जिसको पकड़ा है वो कार्बन है मैंने बस। तो ये सारे जो हाइड्रोजन हैं एक दूसरे से 109.28 मिनट्स की दूरी पे हैं। ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। और इस तरह की ज्योमेट्री को अब ऐसे जाऊं तब भी मुझे एक हाइड्रोजन यहां नजर आएगा कि यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर। चाहे ऐसे जाऊं, एक ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे। ये सारे एक दूसरे से 109.28 मिनट्स की दूरी पे हैं। और इस तरह की ज्योमेट्री को बोला जाता है टेट्राहाइड्रल। इस तरह की ज्योमेट्री को बोला जाता है बेटे टेट्राहाइड्रल। देन आए 5, देन आ जाओ 5। अब अगर 5 बॉन्ड पेयर हो, ठीक, 5 बॉन्ड पेयर ए, बी 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 बी, इसे बोला जाता है बेटे इस तरह की ज्योमेट्री को, ये वाली ज्योमेट्री। जैसे कि PCl5 में दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl। इस तरह की ज्योमेट्री को बोला जाता है बेटे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या पकड़ूं हाथ में, चलो इसी की पकड़ते हैं। ये देखो, ये मैंने फास्फोरस पकड़ा बीच में, ठीक है बेटे, ये फास्फोरस पकड़ा। अब एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, और एक इस तरफ होगी। अरे और पेन ही नहीं है, चलो आप समझो। एक क्लोरीन यहां है, इट इज विजिबल। एक इस तरफ जा रही है, ये सीधा। एक ट्रायंगल इस तरफ और एक ट्रायंगल का इस तरफ है। तो 1 2 3 वर्टेक्स। और बायोपिरामिडल, इसको पकड़ा मैंने, फॉस्फोरस है, और एक क्लोरीन यहाँ है, और ये जो नीचे आ रही है ये भी क्लोरीन है। तो हम ये क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। यहाँ पे भी एक पेन हो, तो लेट मी यूज ए डस्टर। ये देखो, ये डस्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये ट्रायंगल की शेप आ रही है। तो एक क्लोरीन यहाँ है बेटे, एक क्लोरीन यहाँ है, और एक क्लोरीन यहाँ है, और एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे की तरफ जा रही है, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है फॉस्फोरस को। तो इसे मैं बोलूंगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 पिरामिड बने हुए ऊपर नीचे, तो दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 3D है, अगेन आई एम सेइंग। तो एक क्लोरीन यहां जा रही है बेटे, एक क्लोरीन फ्रंट पे, और एक क्लोरीन यहां होगी, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे। तो ये तो प्लेन पे है ट्राइगोनल, और जो पिरामिड्स हैं ऊपर हैं, एक ऊपर क्लोरीन जा रही है, एक नीचे की तरफ आ रही है। इसको ऐसे देखो, फॉस्फोरस को ऐसे देखो, तो एक क्लोरीन ऊपर जा रही है, एक पेपर के नीचे है, एक प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे है। ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो ये हमें पिरामिड की तरफ नजर आएगी। और एक इसके यहाँ पे एक वर्टेक्स, एक भूल जाओ कॉर्नर,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जब 5 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री को कहा जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 पिरामिड बन गए, ओके, 2 पिरामिड बन गए, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट, ये 5 बॉन्ड पेयर थे बेटे, नाउ कम टू 6 बॉन्ड पेयर। नाउ कम टू 6 बॉन्ड पेयर। 6, ये सेंट्रल में ए है, तो एक एटम इसके साथ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, और एक स्क्वायर बनाएंगे। मीन्स एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ पे लगा होगा, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। AB6 लाइक SF6, लाइक सल्फर का यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की ज्योमेट्री को कहा जाता है ऑक्टाहाइड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। देखो ये स्क्वायर है, बीच में सल्फर है, बीच में सल्फर है। सल्फर की के साथ ये अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये फ्लोरीन है, इधर यहाँ फ्लोरीन जा रही है और इधर फ्लोरीन जा रही है, इधर इनके कॉर्नर्स पे फ्लोरीन जा रही है, जा रही है। अब बेटे लाइन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नॉट लाइंस, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं। ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। तो बीच में सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये स्क्वायर की तरह बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे आ रहा है, एक बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ है। तो ये हमें दिखने में कैसा लग रहा है? स्क्वायर और बाई पिरामिडल, जिसे ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं। स्क्वायर और बाई पिरामिडल विच इज नोन एज ऑक्टाहाइड्रल। समझ आई बेटे? अगर एक मॉलिक्यूल के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो कैसे अरेंज होंगे? 6 बॉन्ड पेयर। वो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे एटम होगा, एक यहाँ पे एटम होगा, एक यहाँ पे एटम होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। गॉट द पॉइंट? समझ आ रही है बेटे? इस तरह की ज्योमेट्री को कहा जाता है ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल। Now come to AB7 type, that is 7 bond pairs. सेवन बॉन्ड पेयर्स। अब 7 अगर इतने सारे बॉन्ड पेयर हो गए तो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? पेंटागन। एक पेंटागन की शेप आएगी हमें और ऐसे लगेगा जैसे 2 पिरामिड बने हैं, दैट इज बाय पिरामिडल। जैसे कि IF7 में फ्लोरीन यहाँ लगी है, फ्लोरीन यहाँ लगी है, फ्लोरीन यहाँ लगी है, फ्लोरीन ये रही, फ्लोरीन ये रही, फ्लोरीन ये रही और फ्लोरीन ये रही। ये बन गई, हमें जो शेप नजर आएगी उस शेप को कहा जाएगा पेंटागनल बाई पिरामिडल। मतलब एक पेंटागन है और उसके ऊपर एक पिरामिड जा रहा है और इसके नीचे जा रहा है।
इस फ्लोरीन को अंदर ले जाओ और इस फ्लोरीन को एक नीचे वाली को बाहर निकाल दो, पीडी में लेके जाओ अपने आप को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पेंटागनल बाई पिरामिडल। ओके, I'll take one example in the next class to clear about you according to the Sapper theory, and we'll take lone pair, that is irregular geometry also. इतना समझ आई बेटे? हाँ जी, yes or no? Okay, only one, two. Himanshu, Jivitesh. Himanshu, are you there? Okay. So बेटे just practice out, फिर उसके बाद हम irregular and more of the examples will do.